So, very good morning, student. Today is 1st June 2020, and we will describe the numerical of Pelton wheel. So, describe about the Pelton wheel numerical. Right. In my previous class, we have already discussed about the numerical related to the work done, related to the efficiency determination, related to the force exerted by the jet on the Pelton wheel determination, and the number of jets and the total discharge. These things we have already described in my previous class. But in today's class, we will do some numerical related to the design base of Pelton wheel. Okay. So now I will study the numerical. So what that it said that a Pelton wheel is to be designed for a head of 60 meter when running at 200 rpm. The Pelton wheel develops 95.647 kilowatt shaft power. The velocity of the bucket is 0.45 times the velocity of the jet. What are the other data are given? That is eta overall efficiency is 0.85 and CV, which is coefficient of velocity, is 0.98. So ये मेरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोल दिया गया है. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोलने के बाद हम लोग का सेकंड स्टेप क्या है कि हम लोग न्यूमेरिकल को तोड़ के स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल को ब्रेक करके स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड जो डेटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे. तो पहला क्या बोला गया है कि अ पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइन फॉर ए हेड ऑफ 60 मीटर. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक पेल्टन व्हील डिजाइन करना पड़ेगा जिसका हेड होगा 60 मीटर. मतलब पेन स्टॉक के द्वारा यहाँ पे नोजल के थ्रू से जो फ्लूइड मेरा आएगा, तो यहाँ पे ये जो पेन स्टॉक में जो हेड जो फ्लूइड का जो हेड होगा, जो वाटर का जो हेड होगा, जो एनर्जी होगा, दैट विल बी 60 मीटर. Second, when running at 200 rpm, so what is the speed? It's 200 rpm. The Pelton wheel develops 95.647 kilowatts shaft power. So what it has said, shaft power equals to 95.647 kilowatt. So the velocity of the bucket, second line, the velocity of the bucket is 0.45 times the velocity of the jet. इसका मतलब क्या बोला गया है, देखो ध्यान समझना. the velocity of the bucket वेलोसिटी मतलब ब्लेड वेलोसिटी, तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं, u कंसीडर करते हैं. the velocity of the bucket is 0.45 times the velocity of the jet. जेट का वेलोसिटी को क्या पकड़ते हैं, जेट का वेलोसिटी को हम लोग v पकड़ते हैं या v1 पकड़ते हैं, जो भी हम लोग मतलब वेलोसिटी ऑफ जेट को पकड़ते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग हम लोग v1 पकड़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग ड्राइंग पे अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस इसको v पकड़ रहे हैं. v is equal to actual velocity of jet and u is equal to actual velocity of the blade. So the velocity of the bucket is 0.45 times the velocity of the jet. So u equals to 0.45 v. u equals to 0.45 v. Okay, next, eta overall efficiency is equal to what? Eta overall efficiency is equal to 0.85. Eta overall efficiency is equal to 0.85. What is the value of CV? CV का वैल्यू है 0.98. तो ये सब डेटा हमको दिया गया है. अब पूरा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन बोला ही नहीं गया कि मुझे ये क्वेश्चन में क्या आंसर निकालना है. देखो, a Pelton wheel is to be designed for a head of this. When running at this, the Pelton wheel develops this power, shaft power. The velocity of the bucket is this times the velocity of the jet. Eta overall efficiency का वैल्यू बोल दिया गया है, CV का वैल्यू बोल दिया गया है, लेकिन मुझे क्या निकालना है. अब सवाल यहाँ पे आता है कि when the question is coming in this type, like when the question is coming in this type, like Pelton wheel is designed. पेल्टन व्हील जब डिजाइन करने के लिए बोला जाएगा तब हम लोगों को क्या-क्या चीज को डिटरमाइन करना है, इसीलिए ये डिजाइन बेस्ड न्यूमेरिकल दिखा रहा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी पेल्टन व्हील को डिजाइन करने के लिए बोला जाएगा हम लोगों को क्या-क्या चीज डिफाइन करना है. फर्स्ट वन, वेलोसिटी ऑफ जेट. मैंने क्या बोला था जब डेरिवेशन सिखा रहा था तुम लोगों को, उस टाइम मैंने बोला था कि कुछ इनिशियल पैरामीटर्स होता है, वो इनिशियल पैरामीटर्स को हम लोगों को डिफाइन करना पड़ता है. वो इनिशियल पैरामीटर हम लोग
अगर इनिशियल पैरामीटर हम लोग अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो हम लोग कोई पेल्टन व्हील का वर्किंग वर्क डन पावर ये सब हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो कुछ इनिशियल पैरामीटर हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे मान लो ये मेरा कुछ पैरामीटर्स बोल दिया गया है कि इतना हेड में काम होगा, इतना स्पीड होगा, इतना शाफ्ट पावर चाहिए, मतलब कोई कोटेशन आया है कि मुझे कोई इंडस्ट्री कोई कंपनी का टरबाइन का कंपनी को कोटेशन दिया है कि मेरा जो इंडस्ट्री में जो टरबाइन बैठेगा उस टरबाइन का ब्लेड में 60 मीटर हेड लेकर फ्लूइड मेरा स्ट्राइक करेगा, 60 मीटर हेड लेकर। स्पीड मेरा पेल्टन टरबाइन का जो स्पीड होना चाहिए वो 200 आरपीएम में रोटेट करना चाहिए। शाफ्ट पावर मेरा 95.647 किलोवाट मुझे मिलना चाहिए। U मतलब मेरा जो ब्लेड का वेलोसिटी वो मेरा एक्चुअल वेलोसिटी का इतना परसेंट होना चाहिए। ओवरऑल एफिशिएंसी मेरा इतना परसेंट मुझे मिलना चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मेरा 0.98 है। ये तो मेरा मतलब बेसिक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो अब मुझे पेल्टन व्हील डिजाइन करने दिया, तो अब मैं क्या करूंगा पेल्टन व्हील डिजाइन करने के लिए मुझे क्या-क्या चीज के ऊपर क्या-क्या पैरामीटर्स के ऊपर मुझे फोकस करना पड़ेगा वो मुझे जानना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले क्या बना निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ जेट। मैं पहले दिखा दे रहा हूं कि क्या-क्या चीज मुझे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, इस न्यूमेरिकल को और आंसर बनाने के लिए मुझे क्या-क्या पैरामीटर्स को बनाना पड़ेगा। सेकंड वन, diameter of jet, diameter of jet. So velocity of jet मतलब you have to determine v, diameter of the jet मतलब you have to determine small d. Third one, size of bucket, size of bucket, size of bucket. So size of bucket तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट साइज ऑफ बकेट में क्या क्या आएगा? साइज ऑफ बकेट में आएगा width of the bucket, width of bucket and depth of bucket, width of bucket and depth of bucket. ओके, 3 नंबर हुआ। 4 नंबर, number of buckets on the wheel, number of buckets on the wheel, number of buckets on the wheel. देखो ये सब चीज जो शाफ्ट पावर, देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये इतना सारा पैरामीटर दिया हुआ है, इतना सारा पैरामीटर में मेरा जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरा पेल्टन टरबाइन का पेल्टन व्हील का एफिशिएंसी को डिनोट कर रहा है, दैट इज माय ईटा ओवरऑल एफिशिएंसी एंड शाफ्ट पावर। ये दो चीज को मुझे पाने के लिए, दो चीज को मुझे मिलने के लिए मुझे पेल्टन टरबाइन को कैसे डिजाइन करना पड़ेगा, ये चार चीज को मुझे निकालना है। वेलोसिटी ऑफ जेट, diameter of jet, size of the bucket which is width of the bucket and depth of the bucket, and point number 4, number of buckets on the wheel. Okay, so first of all I will start from the velocity of jet. Velocity of jet का अगर v मुझे निकालना है, v निकालना मतलब ये वाला v1 निकालना है, तो इसका मेरा क्या फॉर्मूला है, हम लोग को क्या पता है, v1 equals to cv into root under 2 into g into h, ये मेरे पास फॉर्मूला है, राइट। तो cv का वैल्यू मुझे पता है 0.98, रूट अंडर 2 into 9.81, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 60 मीटर। इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 33.62 मीटर पर सेकंड। मुझे वेलोसिटी ऑफ द जेट मुझे मिल गया है। अब बकेट वेलोसिटी को मुझे डिफाइन करना है। बकेट वेलोसिटी मुझे क्या बोला गया है, बकेट वेलोसिटी u, u मतलब क्या है, u मतलब है ब्लेड वेलोसिटी या बकेट वेलोसिटी। सो वी नो दैट u equals to u1 equals to u2, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज पाई d n by 60, राइट। u equals to u1 equals to u2 is equal to pi d n by 60, राइट। और u का वैल्यू कितना है, देखो अगर मुझे v1 निकल गया है, यहाँ पे मैंने इसको v पकड़ा हूं, मैंने क्या बोला था कि ये मेरा एक्चुअली v1 है, लेकिन मैं अभी ड्राइंग में कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं इसको बस v लिख रहा हूं। तो मुझे v1 जो है वो ही मेरा v है, क्योंकि वो इनिशियल ट्रायंगल में, इनलेट ट्रायंगल में जो मेरा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट वो तो मेरा v1 है ना, क्योंकि यहाँ पे v1 रखा हूं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u का वैल्यू होगा 0.45 into 33.62। तो इसका कैलकुलेशन करके कितना आंसर आ रहा है, इसको कैलकुलेशन करके आंसर आएगा 15.13 मीटर पर सेकंड। तो u का वैल्यू मुझे मिल गया, v का वैल्यू मुझे मिल गया। अगर मुझे u का वैल्यू मुझे मिल गया
और मुझे एन का वैल्यू मुझे पता है, तो मुझे कैपिटल डी का वैल्यू पता चल जाएगा। कैपिटल डी का वैल्यू मतलब रनर का कितना डायमीटर होगा, राइट, डायमीटर ऑफ द पिल्टन व्हील। ये डी क्या शो कर रहा है, ये डी शो कर रहा है डायमीटर ऑफ द पिल्टन व्हील। तो मैं यहाँ पे ये भी चीज लिख सकता हूँ, डाया ऑफ पिल्टन व्हील, डाया ऑफ पिल्टन व्हील। तो U का वैल्यू 15.13 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू पाई 22.7 डी इनटू n का वैल्यू कितना बोल दिया गया है 200 आरपीएम है, सो 200 डिवाइडेड बाय 60। इस यहां से अगर मैं d को कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा कितना वैल्यू आएगा, यहां से अगर मैं d को कैलकुलेशन करता हूं तो d का वैल्यू आता है मेरा 1.44 मीटर। तो मेरा पेल्टन व्हील का जो डायमीटर है व्हिच इज माय कैपिटल D, ये मेरा निकल गया यहां से d इज इक्वल टू 1.44 मीटर। चलो वेलोसिटी ऑफ जेट एंड डायमीटर ऑफ पेल्टन व्हील मेरा निकल गया। फार्मूला इज वेरी इजी, तुम लोग को देखते ही लग रहा होगा कि पेल्टन टरबाइन का न्यूमेरिकल बहुत इजी है, राइट। सो नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ जेट। डायमीटर ऑफ जेट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। डायमीटर ऑफ जेट निकालने के लिए मैं क्या करना होगा, ओके, डायमीटर ऑफ जेट मुझे क्या बोल दिया गया है, ईटा ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.85। So eta overall is equal to 0.85. Eta overall efficiency is equal to हम लोग पेल्टन टरबाइन में एफिशिएंसी के टाइम एफिशिएंसी का क्लास में मैंने क्या देखा था कि ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर इज इक्वल टू 0.85, राइट। तो शाफ्ट पावर का वैल्यू कितना है, शाफ्ट पावर का वैल्यू यहाँ पे बोल दिया गया है 95.46647। सो 95.647 किलोवाट, उसको मैं वाट में कन्वर्ट करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड बाय वाटर पावर। वाटर पावर मतलब क्या है, रो इनटू जी इनटू क्यू इनटू एच। ये मैं जानता हूं वाटर पावर का फार्मूला, रो जी क्यू एच इज इक्वल टू 0.85। 0.85 मतलब कितना है, इज इक्वल टू 0.85। 0.85 ये मेरा ओवरऑल एफिशिएंसी बोल दिया गया है, ओके। सो नाउ तो मेरा 95.647 into 1000 डिवाइड बाय rho g qh is equal to 0.85। यहाँ पे देखो 95.647 into 1000 डिवाइडेड बाय rho का वैल्यू कितना है 1000 into g 9.81, q वैल्यू पता नहीं है, h का वैल्यू कितना है 60 is equal to 0.85। तो यहाँ से मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे ये q का वैल्यू निकलेगा। तो मैं अगर कैलकुलेशन करता हूं तो मेरा Q का वैल्यू आता है कुछ 0.1912 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मेरा Q का वैल्यू आया। अब मेरे पास अगर Q का वैल्यू आया है तो मैं Q इज इक्वल टू क्या जानता हूं, Q इज इक्वल टू जानता हूं एरिया इनटू वेलोसिटी। Q का वैल्यू कितना है 0.1912 इज इक्वल टू A मतलब पाई बाई 4 इनटू d स्क्वायर इनटू V। तो पाई बाई 4 d स्क्वायर, d मतलब है डायमीटर ऑफ द जेट स्मॉल d। तो यहां से 0.1912 इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। v का वैल्यू मुझे पता है, v का वैल्यू कितना निकला है 33.62। तो यहां पे मैं पुट करूंगा 33.62 और यहां से मुझे d का वैल्यू मिलेगा। तो d का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, d का वैल्यू मिलेगा मुझे 85 mm। 85 mm ये मेरा आंसर आएगा। 85 mm मतलब एक्चुअली ये आंसर आएगा 0.085 मीटर। ये मेरा आंसर आएगा। इसको मैं mm में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि कैपिटल जो d का वैल्यू आया है, कैपिटल D से ये स्मॉल d का वैल्यू का अंतर देखो, इट्स 1.44 मीटर, इट्स 0.085 मीटर। तो इतना छोटा है स्मॉल d, डायमीटर ऑफ द जेट डायमीटर ऑफ द पेल्टन व्हील से छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए इसको मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, राइट। तो डायमीटर ऑफ द जेट मुझे मिल गया। अब क्या बचा रहा, साइज ऑफ द बकेट एंड विड्थ ऑफ द width of the bucket and depth of the bucket। तो मैं जब डिजाइन ऑफ पेल्टन व्हील, मेरा कल का जो लेक्चर था, कल का लेक्चर में मेरा ये फॉर्मूला दिया हुआ था कि कैसे हम लोग width of the bucket and depth of the bucket निकालूंगा, देखते हैं। सो width of the bucket का जो फॉर्मूला है, width of the bucket, width of the bucket का जो फॉर्मूला है that is 5 into D, 5 into D। तो 5 into D मतलब 0.085। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा that is my
वो मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर आएगा कुछ 0.425 मीटर। इसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 425 मिलीमीटर हो जाएगा। width ऑफ द बकेट का फॉर्मूला है 5 into d। डेप्थ ऑफ द बकेट का फॉर्मूला क्या है? डेप्थ ऑफ द बकेट, डेप्थ ऑफ द बकेट, इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है 1.2 into d। सो 1.2 into 0.085, तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आएगा 0.102 मीटर। इसको अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा दैट इज 102 मिलीमीटर। ये मेरा आंसर आएगा। तो मेरा विड्थ ऑफ द बकेट और डेप्थ ऑफ द बकेट का फॉर्मूला मुझे पता है, तो मैं इस तरीके से कैलकुलेशन कर दिया। नेक्स्ट लास्ट बचा हुआ है नंबर ऑफ बकेट्स ऑन द व्हील। नंबर ऑफ बकेट्स ऑन द व्हील को कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ द बकेट ऑफ द व्हील कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला था z इक्वल्स टू 15 प्लस कैपिटल D by 2d। z इक्वल्स टू 15 प्लस कैपिटल D by 2d। 15 प्लस d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू है 1.44 मीटर और स्मॉल d का वैल्यू कितना है? स्मॉल d का वैल्यू है 0.085। सो 2 into 0.085, इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा जेट दैट इज 23.5। इट्स अप्रोक्सीमेटली 24, क्योंकि नंबर ऑफ व्हील, व्हील तो कभी आधा नहीं होगा या व्हील कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। व्हील को या तो 23 करना पड़ेगा या तो 24 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 23.5 आया है, तो दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 24। तो कभी-कभी कोई न्यूमेरिकल में कोई क्वेश्चन बोला नहीं जाता है कि क्या एक्चुअली निकालना है, लेकिन अगर हम लोग को टर्म्स के बारे में पता रहेगा, न्यूमेरिकल टर्म्स के बारे में अगर पता रहेगा तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग को क्या-क्या निकालना है। देखो ये न्यूमेरिकल में कहीं पे भी बोला नहीं गया है कि हम लोग को क्या निकालना है, बस ये बोल दिया गया था कि ये पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइन, राइट? तो क्या डिजाइन करना है, उस डिजाइन का चक्कर डिजाइन करने के लिए क्या-क्या पैरामीटर्स को मुझे निकालना है वो यहाँ पे दिया गया है। कोई भी पेल्टन व्हील को डिजाइन करने के लिए हम लोग को वेलोसिटी ऑफ जेट, डायमीटर ऑफ पेल्टन व्हील, ये चीज निकालना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ द जेट निकालना पड़ेगा, साइज ऑफ द बकेट दैट इंक्लूड्स विड्थ ऑफ द बकेट एंड डेप्थ ऑफ द बकेट, ये दो चीज निकालना पड़ेगा। एंड पॉइंट नंबर 4, नंबर ऑफ बकेट्स ऑन द व्हील, व्हील कितना पेल्टन व्हील या पेल्टन रनर में कितना मेरा बकेट से, कितना नंबर ऑफ बकेट से वो मुझे निकालना पड़ेगा। So this is one type of numerical. Now I will show is another type of numerical which is very interesting. So please show that. See the. So ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल में देखो बोला है कि the 3 jet Pelton turbine is required to generate 10,000 kilowatt under net head of 400 meter. The blade angle outlet is 15 degree and reduction in the relative velocity while passing over the blade is 5%. If eta overall efficiency is 80%, CV equals to 0.98, speed ratio is equal to 0.46, then find diameter of jet, total flow, force exerted by the jet on buckets, and the last, if the jet ratio is not to be less than 10, find the speed of the wheel for a frequency of 50 Hz per second and corresponding wheel diameter. तो मैं ये न्यूमेरिकल करूंगा। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा साइज का है, तो आराम से हम लोग बैठे-बैठे ये न्यूमेरिकल को करेंगे। ओके, थोड़ा ध्यान देना। तो मेरा पहला काम क्या है कि क्या-क्या डेटा दिया हुआ है उसको मुझे अलग करना है। तो फर्स्ट द 3 जेट ऑफ पेल्टन टरबाइन, ये लाइन से मुझे क्या पता चल रहा है? नंबर ऑफ जेट, नंबर ऑफ जेट कितना है मेरा? 3। ओके, is required to generate 10,000 kilowatt under net heat of 400 meter. सेकंड डेटा क्या है? पावर कितना किया बोला गया है? 10,000 किलोवाट अंडर नेट हेड ऑफ 400 मीटर। कैपिटल एच कितना बोला गया है? 400 मीटर। द ब्लेड एंगल आउटलेट इज 15 डिग्री। ब्लेड एंगल आउटलेट मतलब क्या बोला गया है? बेसिकली बोला गया है कि phi equals to 15 डिग्री, phi equals to 15 डिग्री। देखना पेल्टन टरबाइन का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल करने के टाइम पे और इंपैक्ट ऑफ जेट का जो अनसिमेट्रिकल प्लेट के ऊपर जो डेरिवेशन वो दिखाने के टाइम पे मैं ब्लेड एंगल एंड वेन एंगल के बारे में बात किया था, तो वहां से ये पता चल रहा है, राइट? तो phi equals to 15 डिग्री। नेक्स्ट क्या बोला गया है? रिडक्शन इन द रिलेटिव वेलोसिटी व्हाइल पासिंग ओवर द ब्लेड इज 5%। इसका मतलब क्या है?
कि जब फ्लूइड ये स्प्लिटर में जाके स्ट्राइक करेगा, दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे जो इस ब्लेड के अंदर ब्लेड का जो सरफेस थोड़ा रफ होने की वजह से, थोड़ा हल्का फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से जो इनलेट ट्रायंगल में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, आउटलेट ट्रायंगल में रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट ट्रायंगल का रिलेटिव वेलोसिटी से कम होगा। कितना परसेंट कम होगा? 5% कम होगा। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं? VR2 is equal to 0.95 VR1। VR2 is equal to 0.95 VR1, क्योंकि 5% बोला है, 100 से 5 माइनस किया तो 0.95 VR1। ईटा ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल्स टू कितना बोला गया है? ईटा ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल्स टू 80%, CV equals to 0.98, speed ratio is equal to 0.46। ये सारा चीज बोल दिया गया है। अब मेरा पहला काम क्या है? डायमीटर ऑफ जेट स्मॉल डी निकालना होगा। स्मॉल डी निकालने के पहले हम क्या करेंगे? टोटल फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकंड, ये वाला पार्ट को हम पहले निकाल लेते हैं। ये वाला भी निकाल सकता हूँ, ये वाला भी, ठीक है। चलो मैं ये वाला पार्ट ही पहले निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं कैसे निकाल रहा हूँ वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट निकालने के लिए मुझे ये वाला पार्ट पहले चाहिए, टोटल फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकंड। क्योंकि डायमीटर ऑफ जेट को डिफाइन करने के लिए Q इक्वल्स टू पाई बाई 4 d स्क्वायर इनटू v, वहां से मुझे निकालना होगा, तो वहां उसके लिए मुझे Q चाहिए, टोटल फ्लो चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं पहले सेकंड वाला पार्ट निकाल रहा हूं। सेकंड वाला पार्ट में क्या बोला है? टोटल फ्लो मीटर क्यूब पर सेकंड में निकालने बोला गया है। तो मैं क्या करूंगा? ईटा ओवरऑल इक्वल्स टू 80%। तो ईटा ओवरऑल का वैल्यू कितना होता है? ईटा ओवरऑल होता है शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर इज इक्वल टू 80%, मतलब 0.80। शाफ्ट पावर का वैल्यू कितना बोल दिया गया है? 10,000 किलोवाट, डिवाइडेड बाय वाटर पावर कितना होता है? रो जी क्यू एच डिवाइडेड बाय 1000, ये होता है 10,000 किलोवाट डिवाइड बाय रो जी क्यू एच इनटू 1000 डिवाइड बाय 1000 किलोवाट इज इक्वल टू 0.80। तो यहाँ पे 10,000 डिवाइडेड बाय रो जी का वैल्यू कितना है? रो मतलब 1000, जी का वैल्यू 9.81, क्यू का वैल्यू पता नहीं है, निकालना होगा। हेड का वैल्यू कितना है? 400 मीटर, h इक्वल्स टू 400 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.80। यहां से 1000 कट जाएगा और ये कैलकुलेशन करके यहां से मुझे Q का वैल्यू मिलेगा। तो Q का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा? कैपिटल Q इक्वल्स टू सॉरी 3.18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मेरा कैपिटल Q का वैल्यू आया, दैट इज 3.18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये जो मेरा टोटल फ्लो हुआ, ये कितना नंबर जेट की वजह से हुआ? 3 जेट की वजह से हुआ। ये जो मेरा टोटल फ्लो हुआ, टोटल डिस्चार्ज हुआ, ये कितना जेट की वजह से हुआ? 3 जेट की वजह से हुआ। तो एक जेट के लिए क्या होगा? Q/3 होगा, दैट इज 3.18/3, दैट इज 1.06 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एक सिंगल जेट के लिए डिस्चार्ज कितना हुआ? दिस टोटल डिस्चार्ज कितना हुआ? Q इक्वल्स टू 3.18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो ये मेरा पहला टोटल फ्लो मैंने निकाल लिया हो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? डायमीटर ऑफ जेट में जाना पड़ेगा। डायमीटर ऑफ जेट में जाने के लिए मुझे डायमीटर ऑफ जेट मतलब Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, राइट। एरिया डायमीटर ऑफ जेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एरिया को पाई बाई 4 d स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मुझे Q का वैल्यू पता है, D का वैल्यू निकालना पड़ेगा, V का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा, राइट। V का वैल्यू मैं अभी कैसे निकालूंगा वो मैं देखूंगा। V का वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ? V इक्वल्स टू मैं जानता हूँ CV इंटू रूट अंडर 2 इंटू G इंटू H। ये फॉर्मूला मुझे पता है। CV का वैल्यू कितना है? 0.98 इंटू रूट अंडर 2 इंटू 9.81 इंटू H। H का वैल्यू कितना बोल दिया गया है? 400 मीटर। सो H इक्वल्स टू 400 मीटर। यहाँ से मैं V का वैल्यू का कैलकुलेशन करूंगा तो V का वैल्यू मेरे पास आएगा 87 मीटर पर सेकेंड। सो V का वैल्यू आया 87 मीटर पर सेकेंड। अब V का वैल्यू अगर मुझे मेरे पास आ गया है तो V का वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करके D का वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखते हैं क्या निकल रहा है। सो Q का वैल्यू कितना है? 3.18। अब ये मेरा V का वैल्यू है, Q का वैल्यू 3.18 है, लेकिन ये 3.18 कितना है? 3 जेट के लिए ये टोटल डिस्चार्ज हुआ।
लेकिन मुझे एक सिंगल जेट का मुझे डी निकालना होगा, एक सिंगल जेट का मुझे डायमीटर निकालना होगा। तो यहाँ पे मैं क्यू को कौन सा क्यू में डिनोट करूंगा, यहाँ पे टोटल क्यू को मैं एक सिंगल क्यू को मैं डिनोट करूंगा। मतलब मैं जो वैल्यू लूंगा दैट इज 1.06, एक सिंगल जेट के लिए जितना डिस्चार्ज हो रहा है। तो 1.06 इक्वल्स टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू वी, वी का वैल्यू 87। तो यहां से अगर मैं डी का वैल्यू कैलकुलेशन करूंगा तो डी का वैल्यू मेरे पास आएगा कुछ 0.125 मीटर। तो मेरे पास डायमीटर ऑफ जेट का वैल्यू मिल गया, टोटल फ्लो का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट है फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द बकेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द बकेट। तो बकेट में कितना फोर्स मेरे एक्सर्टेड हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या है हम लोग अभी देखेंगे। बकेट में मेरा कितना फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज Fx इक्वल्स टू रो a v1 इनटू vw1 प्लस vw2। ये था मेरा बकेट के ऊपर मेरा कितना फोर्स मेरा एक्सर्टेड होता है, रो a v1 इनटू vw1 प्लस vw2। ओके, तो अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे मेरा v1 का वैल्यू मुझे पता है, a का वैल्यू मुझे पता है, रो का वैल्यू मुझे पता है, VW अकॉर्डिंग टू द डायग्राम VW1 इक्वल्स टू V1, तो VW1 का भी मुझे वैल्यू पता है। अब क्या पता नहीं है, VW2 का वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो VW2 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, देखो सेम चीज कल भी मैंने दिखाया था, VR2 किसके साथ एंगल कर रहा है, ये लाइन के साथ कितना एंगल कर रहा है, फाई एंगल कर रहा है। तो जिसके साथ एंगल करता है वो मेरा cos थीटा बनता है। तो यहाँ पे ये फाई है, तो ये इधर अगर जाएगा, इसको अगर मैं x एक्सिस बराबर करूंगा तो ये मेरा VR2 cos फाई बनेगा। तो VR2 cos फाई, राइट। अब ये मेरा VR2 cos फाई है, ध्यान से देखना, ये मेरा VR2 cos फाई है और ये मेरा U2 है। तो VR2 cos फाई से अगर मैं U2 को माइनस करूंगा तो ये मेरा VW2 निकल जाएगा ना। सो VR2 cos फाई माइनस U2। अब मैं देखूं मुझे अभी क्या निकालना है, VR2 मुझे निकालना है क्योंकि फाई का वैल्यू मुझे पता है 15 डिग्री, लेकिन मेरे पास ना U का वैल्यू है ना VR2 का वैल्यू है। तो मैं पहले को देखूंगा, मैं U का वैल्यू निकालूंगा। U का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या जानता हूं, मेरे पास क्या फॉर्मूला दिया गया है, स्पीड रेशियो दिया गया है। स्पीड रेशियो मतलब मैं क्या जानता हूं, KU इज इक्वल टू U by V, right? KU is equal to U by V, but this V is theoretical velocity होता है। तो what is the value of the U? U equals to 0.46 into root under 2 into G into H। H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू है 400 मीटर। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास U का वैल्यू आएगा 40.75 मीटर पर सेकेंड। अब मैं जानता हूं कि U इक्वल्स टू U1 इक्वल्स टू U2 होता है, तो यहाँ पे U2 का वैल्यू भी 40.75 मीटर पर सेकेंड होगा। अब मुझे पता करना है VR2। देखो VR1 इस VR1 के साथ VR2 का फॉर्मूला क्या है, VR2 is equal to 0.95 VR1 है। अब मैं देख रहा हूं फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम दिस इनलेट ट्रायंगल इक्वेशन, VR1 इक्वल्स टू V1 माइनस U1। देखो ये मेरा V1 है, ये मेरा V1 है, यहां से अगर मैं U1 को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, VR1 मिलेगा। तो VR1 इक्वल्स टू V1, V1 का वैल्यू कितना आया था, V1 का वैल्यू आया था मेरा एक सेकेंड, V1 का मेरा वैल्यू कितना आया था, V1 का वैल्यू आया था 87 माइनस 40.75। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो VR1 का वैल्यू कितना आएगा, VR1 का वैल्यू आएगा कुछ 46.25 मीटर पर सेकेंड। अब VR1 का वैल्यू अगर 46.25 मीटर पर सेकेंड है और VR2 इज इक्वल टू 0.95 VR1 है, तो मैं VR2 का वैल्यू निकाल पाऊंगा, VR2 इज इक्वल टू 0.95 into 46.25। यहां से VR2 का वैल्यू निकलेगा, VR2 का वैल्यू कितना आएगा, VR2 का वैल्यू आएगा कुछ 44 मीटर पर सेकेंड। तो VR2 का वैल्यू पता चल गया, U2 का वैल्यू पता चल गया। सो आई विल पुट द वैल्यू, VR2 का वैल्यू है 44 cos of 15 डिग्री माइनस U2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 40.75। इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो VW2 का मेरा कितना वैल्यू आएगा, VW2 का वैल्यू आएगा कुछ 1.75 मीटर पर सेकेंड। तो VW1 का वैल्यू पता है, VW2 का वैल्यू पता है, तो Fx की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा 1000
इंटू π/4 d1 स्क्वायर इंटू v1 का वैल्यू पुट करूंगा, vw1 का वैल्यू पुट करूंगा, vw2 का वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि सब वैल्यू मेरा यहाँ पे नोन वैल्यू है, d1 का भी वैल्यू नोन है, v1 का भी वैल्यू नोन है, vw1 का भी वैल्यू नोन है, vw2 का भी वैल्यू नोन है। तो इसको अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा दैट इज 94075 न्यूटन। इसको अगर मैं किलो न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा तो 94.075 किलो न्यूटन। सो एफएक्स का वैल्यू मिल गया, फोर्स का वैल्यू मुझे मिल गया। अब मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है लास्ट पॉइंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इरेगुलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको मुझे ध्यान से देना बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा समझना कि किस तरीके से हम लोग ये वाला न्यूमेरिकल का पार्ट बना रहे हैं। इफ क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इफ द रेशियो इज नॉट टू बी लेस देन 10, नॉट टू बी लेस देन 10 मतलब क्या बोला जा रहा है, जेट रेशियो इज नॉट टू बी लेस देन 10। सॉरी एक सेकंड, सॉरी। तो जेट रेशियो किसको बोला जाता है, जेट रेशियो मतलब स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल D बाय स्मॉल d इक्वल्स टू 10। फाइंड द speed of the wheel for a frequency of 50 hertz per second and corresponding wheel diameter। अगर क्वेश्चन बोले अगर ये जेट रेशियो 10 से नीचे नहीं होता है, 10 से कम नहीं होता है, फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हील, व्हील का स्पीड मतलब कैपिटल N निकालने बोल रहा है, फॉर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज पर सेकंड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग व्हील डायमीटर, उस रिलेटेड व्हील का डायमीटर कितना होगा वो निकालने बोल रहा है। सो मेरे पास तो स्मॉल d का वैल्यू पता है, राइट मेरे पास स्मॉल d का वैल्यू पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटल D इज इक्वल टू 10 इनटू स्मॉल d का वैल्यू कितना आया था, स्मॉल d का वैल्यू आया था 1.25। ये वीडियो लेक्चर को फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना, इस जगह पे मैं स्मॉल d का वैल्यू निकाला था, राइट। तो 10 इनटू 1.25, तो यहां से कैलकुलेशन करके मेरे पास कितना आ रहा है, सॉरी 10 इनटू 0.125, ये मीटर में कन्वर्ट किया था ना, 10 इनटू 0.125 तो 1.25 मीटर। सो कैपिटल D का वैल्यू मुझे मिला। अब u इक्वल्स टू मैं जानता हूं कि पाई dn बाई 60, u का वैल्यू मुझे पता है, पाई का वैल्यू मुझे, d का वैल्यू मुझे पता है, बट n का वैल्यू मुझे पता नहीं है। n का वैल्यू यहाँ पे कहीं पे बोला गया है, कहीं पे नहीं बोला गया है। तो n इक्वल्स टू 60 इंटू u डिवाइडेड बाई पाई इंटू d। u का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है। इसको अगर सारा चीज को पुट आउट करूंगा तो n का वैल्यू आएगा मेरा 620 rpm, right। Find the speed of the wheel for a frequency of 50 hertz per second। स्पीड का और एक इक्वेशन होता है, याद रखना, n is equal to 60 into f by p, 60 into f by p, f for frequency and p for number of poles। तो f जब 620 rpm है तो फिर पोल का वैल्यू कितना है, पोल का वैल्यू होगा 60 into f by n। तो 60 इंटू f मतलब कितना बोला गया, फ्रीक्वेंसी 50 डिवाइडेड बाय n मतलब 620। यहां से p का वैल्यू कितना आएगा, p का वैल्यू आएगा 4.85, इट्स अप्रोक्सीमेटली 5, क्योंकि नंबर ऑफ पोल कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, राइट। तो p पोल का वैल्यू मेरा 5 आया। अब जब पोल का वैल्यू मैं 4.85 से मैं 5 कर रहा हूं, सेम इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूं n इक्वल्स टू 60 इंटू f मतलब 50 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरा ये कितना होता है, ये मेरा आता है 600। देखो 620 से किया था, 620 से किया था तो मेरा 4.85 आया, उसको मैंने 5 किया, जब भी ये 5 में कन्वर्ट हुआ था स्पीड में कितना अंतर हुआ, 20 आरपीएम का घाटा हुआ, 600 आरपीएम। इनका वैल्यू 600 आरपीएम आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जेट रेशियो मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं वो मुझे देखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास फॉर्मूला है u इक्वल्स टू पाई dn बाई 60। मेरे पास n का वैल्यू आया है 600 आरपीएम, क्योंकि पोल का नंबर को कैलकुलेशन किया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, d इक्वल्स टू u इज इक्वल टू पाई dn बाई 60, तो d इज इक्वल टू 60 इंटू u डिवाइडेड बाई पाई इंटू n। तो 60 इंटू u का वैल्यू पुट करेंगे, u का वैल्यू कितना आया था मेरा, u का वैल्यू आया था 40.75 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 600 आरपीएम। यहां से मैं अगर कैलकुलेशन करता हूं तो मेरा d का वैल्यू आता है लमसम 1.3 मीटर। ओके, तो d का वैल्यू आया है 1.3 मीटर। अब मैं देखूंगा कि ये जेट रेशियो 10 से नीचे हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। मैं देखूंगा m इक्वल्स टू कैपिटल D 1.3 और स्मॉल d का वैल्यू कितना आया था, स्मॉल d का वैल्यू आया था
0.125, तो 0.125 इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 10। तो ये मेरा सेटिस्फाइड हुआ। मैंने क्या किया, मैंने जेड रेशियो का फार्मूला, जेड रेशियो को पहले मैंने पकड़ा 10, वहां से मैंने कैपिटल डी कैलकुलेशन किया, कैपिटल डी से मैंने स्पीड कैलकुलेशन किया, स्पीड का दूसरा फार्मूला फ्रीक्वेंसी पोल रेटेड फार्मूला से पोल कैलकुलेट किया, फिर पोल को से पोल का नंबर को फ्रैक्शन में आया था तो उसको मैंने कॉमिक नंबर में कंप्लीट किया 4.85 टू 5 जब मैंने पुट किया तो स्पीड का वैल्यूएशन चेंज हुआ दैट इज 600। उसी से फिर से मैं डायमीटर निकाला, डायमीटर का वैल्यू आया 1.3। अब मैंने चेक किया कि एक्चुअल जो जेड रेशियो है वो 10 का नीचे ही है, ज्यादा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो जेड रेशियो है वो 10 का ऊपर है। तो इस तरीके से मेरा सेटिस्फाइड हुआ कि जेड रेशियो जब 10 से ऊपर है दैट टाइम द स्पीड ऑफ द व्हील इज 600 rpm and the corresponding wheel dia is 1.3 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग ये जो पेल्टन व्हील का जो डिजाइन रिलेटेड बेस न्यूमेरिकल है उसको हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। So now I am concluding my class. So thank you for attending my class. Have a nice day. Stay home and stay live. Thank you.